He is a 42-year-old male patient, a resident of Delhi. He is a graduate and he is a bank employee. History given by himself and history is reliable. He presented to our hospital on 21st of June 2024 and he was examined on the same day. I would like to start my history 15 days prior to his presentation. Patient was in his usual state of health when he started having complaints of fever along with throat pain and dry cough, for which he consulted a local physician and he was prescribed tablet azithromycin 500 mg and tablet paracetamol. Patient became afebrile after 3 days and he resumed his daily activities. नहीं फीवर कब हुआ था उसको? फीवर थ्रोट पेन? Fever, throat pain, dry cough हुआ था सर, हाँ? for which he was prescribed antibiotics and paracetamol. नहीं 31 जून से पहले कितने दिन पहले हुआ था उसको? सर 5th जून को हुआ था. अच्छा ठीक. 21st जून को प्रेजेंट किया था सर. 21 जून को 10 दिन पहले. Patient became afebrile after 3 days and he resumed his daily activities. 3 days later, he started noticing decrease in his urine output along with passing dark colored urine. He also noticed mild swelling of his feet localized to the ankle region and there was also mild facial puffiness which was more in the morning. Over the next 2 to 3 days, his pedal edema gradually worsened and there was progressive decline in his urine output. And he also started having mild breathlessness upon exertion. At this point, he went to a hospital and he was admitted for further investigations. He underwent routine blood and urine investigations and he was told that he is having a high creatinine and he is passing blood and protein in the urine. As his urine output was very low and he was having signs of fluid overload, he was started on hemodialysis after inserting a catheter in his neck. He was also started on IV steroids at the same time. After a few sessions of dialysis, a kidney biopsy was done, and based on the biopsy report, he was told that he needs further aggressive management. Patient remained dialysis dependent, and his urine output was quite low, and he came to our hospital for further evaluation management. Just a minute. 21 जून को ही was admitted in Apollo hospital. So 21st जून को ही was admitted. 21 को अपोलो में. उसके पहले इसको कब कंप्लेन हुई थी? दूसरे हॉस्पिटल में डायलिसिस हुई इसकी. Yes sir. उसको he started having fever on 5th of June sir. अच्छा 5th जून को हुआ था. Yes sir. From 5th जून से 21 जून तक बाहर था. Yes sir. And he became afebrile on 7th of June. To decrease urine output, cola color urine, when he started having dark color? 6 days after the onset of fever. 11th. Yes. Okay. There was no history of gross hematuria. There was no history of malaise, lethargy, arthralgia, myalgia. There was no history of any skin rashes or photosensitivity. There is no history of loss of weight, loss of appetite, low backache, any bony pains. There is no history of cough, hemopsis, expectoration. There is no history of NSAID intake. There is no history of NSAID or any indigenous medicine use. There is no history of flank pain or passing any stones. There is no history of any recurrent lower urinary tract symptoms. No history of loose stools, vomiting. No history of chest pain, jaundice, melena, hematemesis. Past history, patient gives history of swelling and pain in his big toe, for which he would consult a physician and he used to be prescribed febuxostat painkillers. And these episodes used to resolve after 1 to 2 weeks. Such episodes have occurred around 3 to 4 times in the last 5 years. There is no history of diabetes, hypertension, asthma, tuberculosis, seizure disorder. There is no history of any surgical intervention in the past. Family history, there is no history of any kidney disease in the family. Personal history, he consumes a mixed diet. His appetite is normal, sleep is sound, bowel movements are normal. Bladder, he is passing around 100 ml of urine in 24 hours. He is a non-smoker, non-alcoholic, and there is no history of any other substance abuse. To summarize the case, 42-year-old male with history of gouty arthritis, without any other significant past history, family history, or personal history, presented with history of RTI, which resolved after 3 days, following which he developed output along with pedal edema and facial puffiness.
for which he was admitted in a hospital and was told to have deranged kidney function along with proteinuria and hematuria. And he was started on hemodialysis and given IV steroids and underwent a kidney biopsy. तरुण, इस हिस्ट्री से क्या डायग्नोसिस डू यू थिंक? 52 years more, male, history of fever, treated throat pain, treated for 3 days, antibiotic, became febrile. After 5-6 days, he started having decreased urine output, cola-colored urine, and then he went into dialysis 3-4 days. There is no other any significant history, what he told. But the presentation is similar to nephritic syndrome. Dialysis dependent means creatinine must be high, हाँ? नहीं वगैरह सीकेडी नहीं है, प्रायर क्रिएटिनिन नहीं पता। अच्छा ठीक है, ओके। वैसे it is nephritic syndrome and it is a glomerular disorder, most probably IgA nephropathy, because it is a synpharyngitic presentation of the patient. सिनफेरेंजाइटिस किसको बोलते हैं? Sir, if within 1 week of the onset of the infection the patient is having No. symptoms of the या तो पेशेंट को थ्रोट पेन होता है, नेक्स्ट डे उसको हेमेचूरिया हो जाती है, या मैक्सिमम 3 डेज, विद इन 3 डेज मैक्सिमम। अदरवाइज यूजुअली सिनफेरेंजाइटिस मींस थ्रोट पेन एंड हेमेचूरिया, ब्लैकिश यूरिन, दैट इज कॉल्ड सिनफेरेंजेटिक इलनेस। दिस इज आईजीए नेफ्रोपैथी। बायोप्सी में कुछ भी निकल सकता है, बट क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ आईजीए इज दिस। ही इज टेलिंग this fever thing of 5-6 after 5-6 days he started having decreased urine output and change of urine color and all these things. Third day urine output started decreasing. Third day क्या है history? Fever started on 5th of June, sir, and he started noticing decrease in urine output around 10th or 11th. 10th after 5-6 days, ना? 5-6 days. ठीक है, तो you will keep, I'm not telling you, but you will, but synpharyngitic is not this is. So after almost whatever he is telling या conveying with the patient, after 1 week he started having symptoms after throat pain, जो भी whatever history. तो what syndromes looks like? कौन सा syndrome लग रहा है बताओ वरुण? So according to history, हिस्ट्री से बस, और कुछ नहीं आगे। हाँ? by syndromic diagnosis of acute nephritis. acute nephritis, चलो बताओ, और क्या होगा? रीनल फेलोर हो गया, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? RPGA, there is possibility of RPGA. चलो ठीक है, अभी बनाओ, आगे बताओ। एग्जामिनेशन करोगे ना, पूरा बोला करो ना कि आई विल एग्जामिन द पेशेंट, सी द यूरिन एग्जामिनेशन, देन विल मेक द डायग्नोसिस ऑफ सिंड्रोमल। हिस्ट्री कभी कभी पेशेंट हमेशा अच्छा नहीं देता, तो आपके केस हिस्ट्री समरी से यू विल हैव आइडिया। आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकती है, एक्यूट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है पेशेंट को, देयर इज ए एक्यूट प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ भी हो, एक्यूट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या एक्यूट प्रॉब्लम है, ल्यूपस हो सकती है, कुछ भी प्रेजेंट कर सकता है ये, बट जो भी है इट इज एक्यूट नेफ्राइटिक इलनेस लग रही है। सिंड्रोम अभी नहीं, अभी एग्जामिनेशन फाइंडिंग बताओ। Coming to the physical examination, patient is moderately built and well nourished. His height is 176 centimeters, weight 83 kilos. कितना बीपी? जोर से बोलना जरा, Sir, थोड़ा तेजी से बोलो। patient is moderately built, well nourished, height 176 centimeters. His weight is 83 kilos and the BMI is 26. Vitals, his blood pressure is 160 by 90 mmHg, measured in right arm supine position. His pulse rate is 98 beats per minute, regular rhythm, good volume. Condition of the vessel wall is normal. There is no radial femoral delay. His respiratory rate is 20 cycles per minute. Temperature is 90 degree Fahrenheit. There is no pallor, icterus, cyanosis, clubbing. Fetal edema is present 2+. Head-to-toe examination, his hair appears normal. Face, there is mild facial puffiness. There is no malar rash. Oral cavity appears normal. There are no ulcers. Throat examination, tonsils are normal. Posterior pharyngeal wall is normal. Nose and ear examination are also normal. Skin over his chest, abdomen, back and front appears normal. There is no visible rash, purpure or scar marks. Palms and nails are normal. पॉजिटिव क्या फाइंडिंग्स हैं? Positive findings of facial puffiness here. पेशेंट को कैथेटर पड़ा हुआ है ना, तो ये बोलो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ना। पेशेंट इज डायलिसिस डिपेंडेंट, तो आईजे कैथेटर पड़ा होगा ना, वही बाहर से डायलिसिस, तो कैथेटर, दैट इज अ पॉजिटिव फाइंडिंग, वेरी स्ट्रांग फाइंडिंग इन योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और फिर ठीक है, पैलर है कि नहीं है? पैलर नहीं है, ठीक।
बाकी पीडल findings- एडिमा है, हाइपरटेंशन है, तो वही क्लिनिकली चेस्ट वगैरह का एग्जामिनेशन कैसा है? So chest examination, precordium is normal. Trachea center in position, skin over the chest and back is normal. Auscultation, bilateral air entry is equal. There is bilateral mild basal palpitations are present. सपोज अगर डायलिसिस नहीं हुई होती तो व्हाट यू एक्सपेक्ट इन पीएसजीएन? So we expect signs of fluid overload. हाँ, यस, फ्लूइड ओवरलोड पल्मोनरी एडिमा से पेशेंट प्रेजेंट करता है ऐसे। तभी उसको डायलिसिस का मेन इंडिकेशन ही यही रहा होगा बेसिकली, उन्होंने डायलाइज ही इसलिए किया होगा इसको। चलो और एग्जामिनेशन फाइंडिंग बताओ। यूरिन Examination is normal, sir. हाँ। CNS examination, there are no focal neurological deficits. Urine routine examination, dipstick protein is 3+. On microscopy, RBC is 50 to 60 per high power field. WBC is 1 to 2. There are no casts or crystals. Fundus examination is normal. तरुण बताओ, इस यूरिन के एग्जामिनेशन में तुम्हारी क्या डायग्नोसिस है? पेशेंट डायलिसिस डिपेंडेंट है। बैठे बैठे रहो बेटा। Sir, RBC cast is there. आरबीसी कास्ट है नहीं? Cast level. 50 to RBC 60 RBC हैं। आरबीसी हैं 50 to 60। Protein urea भी 3+ है। हाँ। So it is between 300 to 1000 mg. हाँ 300 to 1000 mg है protein urea. हाँ हाँ It is not in nephrotic range. Yes, हाँ, ठीक है। So it goes in the favor of nephritic. ठीक है, नेफ्राइटिक पिक्चर है। सो वरुण, व्हाट इज योर सिंड्रोमल डायग्नोसिस विथ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन? Syndromic diagnosis is acute nephritic syndrome. यस। And etiological diagnosis, first I would like to keep. नो, अभी रुको, डायग्नोसिस में बाद में जाना। एक्यूट नेफ्राइटिस, व्हाट आर अदर सिंड्रोम्स? सिंड्रोम पहले पता होने चाहिए ना तुमको। केस तुम्हारा तो खत्म है, केस में तो कुछ है ही नहीं। चलो थ्योरी रिवाइज करो। व्हाट आर द अदर सिंड्रोम्स इन नेफ्रोलॉजी? बताओ। तुम अकेले बताओगे कि इनको सबको खड़ा करूं एक एक को? कितने होते हैं? 6, 7, 8, 9? हाँ बताओ, 9 बताओ। वेरी गुड। Nephrotic syndromes, हाँ acute nephritic syndrome, हाँ rapidly progressing lower nephritis, RPRF or RPGF, then acute kidney injury, CKD, हाँ वेरी गुड। then अरे क्रॉनिक किडनी डिजीज कहाँ बोला? हाँ obstructive uropathy. ठीक है। और सीकेडी बताओ ना, सीकेडी कहाँ बताया? 5th पे बोला, बता दिया। 5वां बोला। और बोलो, गिन रहा है बिल्कुल, सागर हमारा गिन रहा है। Renal calcular disease. और बोलो। एसिम्टोमेटिक यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी, हेरिडिटरी सिस्टिक डिजीज का एक ये ग्रुप होता है। ठीक है, ये होते हैं। तो सिंड्रोमल डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जामिनर क्लिनिकली यही पूछता है, व्हाट इज योर सिंड्रोमल डायग्नोसिस? सो व्हाट आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ योर सिंड्रोमल डायग्नोसिस? एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम बताओ। हाउ यू विल आंसर द एग्जामिनर? Acute nephritic syndrome, there is abrupt decline in kidney function along with signs of glomerular involvement, which is proteinuria, hematuria, and hypertension. कभी भी अपने केस को अगर एग्जामिनर कहे, सभी बोलते वही है नेफ्रोलॉजी में कुछ नहीं, बट हाउ यू प्रेजेंट द केस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोलो, बिहेव लाइक एमबीबीएस डॉक्टर। बोले सर, माय पेशेंट, आई एम आस्किंग व्हाट आर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो सर, माय पेशेंट प्रेजेंटेड विथ हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट हिस्ट्री and rapidly progressive deterioration in renal function, became dialysis dependent, cola colored urine, hypertension is there, sign of fluid overload there, and he was dialyzed. So it was, ठीक है, and then urine examination shows this, what I have examined and what I am finding, so it goes more in favor of nephritic syndrome. ऐसे बोलते हैं, जवाब देते हैं सेम चीज को। हमेशा हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ पहले, क्या बनाएगा इसका? अकेले यही भर थोड़ी है। चलो अपनी डायग्नोसिस बताओ पहले, क्या है? व्हाट डू यू थिंक? So acute nephritic syndrome, पूछो पूछो। etiology probably acute post-infectious glomerular nephritis. ठीक है। Second, I would like to keep IgA nephropathy as a ठीक है। possibility, sir. Third, I would like to load ANCA-vasculitis also. ठीक बता, नहीं So you अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ ना, इसमें क्या क्या और रखेगा? नहीं मान लो Differential means acute post-infectious GN, IgA nephropathy, ANCA-vasculitis, anti-GBM syndrome. अच्छा, anti-GBM भी क्यों? हाँ Rapid onset of हाँ, क्यों नहीं एंटी जीबीएम हो सकता? Severity of symptoms is quite high, and
there is rapidly evolving kidney declining kidney function along with requirement of dialysis also. But the age group is a little atypical. Plus, you mentioned That is history what. of no. अच्छा हाँ next जो पूछ रहा है, what is against your PSGN in this patient? PSGN sir usually classically occurs in children and adolescents. And also PSGN usually between 3 to 12 years. और चिल्ड्रन की बीमारी है PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या बहुत ही सीनियर एज में जब इम्यूनिटी लो हो तब होता है, या कहीं एपिडेमिक फैल गया हो तब हो जाएगा नहीं, ठीक है, अदरवाइज यूजुअली नहीं होता. बट दिस कैन अकर इन मैक्सिमम 10%, मतलब केसेस में यू विल गेट इन एडल्ट, तो यू कैन नॉट टोटली रूल आउट. दैट्स व्हाई यू आर कीपिंग अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस. आई थिंक एंड दैट्स व्हाई दे हैव प्लान. नहीं, बट पहले कैसे वर्कअप करोगे, चलो बताओ. तुम्हारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए, टेस्ट कैसे करोगे? ये पेशेंट आपके पास आ गया, हिस्ट्री ले लिया आपने, एग्जामिन कर लिया, यूरिन देख लिया, अब बताओ क्या करोगे? अब इसकी तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस बताना है ना. start with routine blood and investigations. हाँ. Why the doctor, the first who were admitted, did the biopsy? You convince us. Indication of biopsy. CBC sir will check for hemoglobin level, platelet count, WBC Huh? count. CBC में sir we check for hemoglobin if there is any anemia. WBC count, platelets if there is any thrombocytopenia. Then we check the RFT, we see the urea creatinine level, uric acid level, sodium, potassium, calcium and phosphate. Then routinely we'll get an LFT done. Then viral markers, PTNR, APTT. Then IPTH, vitamin D also sir. After that, IPTH, विटामिन डी, चलो एक्यूट इलनेस है, IPTH क्यों करोगे? मतलब कहीं से क्रॉनिक तो नहीं लग रहा है कोई सस्पिशन में, एनीमिक नहीं है, ना कोई हिस्ट्री है प्रीवियस कोई डिजीज की, कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो तो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है. सेकंड स्टेप में करोगे ना, पहले अल्ट्रासाउंड करोगे पेशेंट का, अगर तुम्हें कुछ डाउट लगेगा तब करोगे. PTH वगैरह कॉस्टली टेस्ट हैं, ठीक है. चलो आगे बताओ और क्या करोगे, after that we'll और ब्लड के क्या टेस्ट करोगे इस पेशेंट में खासकर? ANA, हाँ, ANA sir, ANA ठीक है, और MPO and the PR3 and हाँ ठीक है. anti-GBM antibodies, अरे जो सबसे जरूरी वो बताना. ASLO titer, और ASLO टाइटर के अलावा, complement sir. यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन C3 C4 एंड ASO टाइटर, और उसको पहले बताओ, ठीक है. अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग? अल्ट्रासाउंड में क्या मिलेगा बोलो, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं. Normal size kidneys. आप में से फर्स्ट कोई और बोलो रे, अल्ट्रासाउंड में क्या मिलेगा? यूवी में क्या क्या देखते हैं यार, मतलब हाउ डज दैट हेल्प यू इन दिस केस? किडनी साइज देखोगे और बताओ. CKD AKI में 3 चीजें क्या देखते हो अल्ट्रासाउंड में? हर अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है डॉक्टर साहब. अरे साइज, पढ़ती सेकंड है ना. हाँ, इकोजेंसिटी. हाँ. इकोजेंसिटी कैसे देखते हैं? लिवर के साथ कंपेयर करते हैं. क्या क्या, ठीक से बोलो, सबको समझ में आना चाहिए. लिवर के साथ we will compare it. हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? If it is मतलब लिवर की जितना इकोजेनिक है, it is highly ecogenic kidney. ओके ठीक है. और क्या देखेंगे? कार्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन देखेंगे. नॉर्मल क्या होती है कार्टिकल थिकनेस? Well differentiated. वेल डिफरेंशिएट. थिकनेस कितनी होती है कार्टेक्स की नॉर्मल? हाँ हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक. तो ये सब चीजें देखेंगे, साइज, थिकनेस, ये, और देखेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, कुछ और तो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है सिस्टम में. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है देखना. आगे आ जाओ बेटा, आगे आओ. So ultrasound has to be done in almost all वहाँ बैठ cases जाओ. of nephrology मैक्स because आके से आ रहे हो ना number तुम one लोग. you rule out post हाँ, obstructive बैठो. causes right away. हाँ? If there is an like elderly male कुछ और है, it is the prostate, the bladder issues, stone, tumor, hydronephrosis. So your management line changes very differently versus the pre-renal is usually defined by the history, and then intrarenal causes we are already talking about. So ultrasound was done at your facility or outside facility? It was one process. It was normal. Yes. Kidney size was normal. So USG, urine examination, most important thing, urine examination, good urine examination. That's why it's a part of examination. Then ultrasound, and then जो आप CBC और ये करते हो, तो ये हर एक का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए. These are the basic, very important टेस्ट. तो क्या है बाहर के रिपोर्ट्स में, क्या था बताओ? Serology reports में क्या क्या?
सीरोलॉजी की क्या रिपोर्ट थी और ये क्या था? So hemoglobin was 10.8, WBC count 7,900, हम्म platelets 1.3 lakh, हम्म urea was 180, हम्म creatinine was 5.8, sodium was 140, potassium 4.8, uric acid was 8.0, calcium 9.2, and it was normal, sir. Viral markers HIV, HPV, GHCV all were non-reactive. ANI by Hep2 was negative, 1:80 dilution था sir. MPO ANCA PR3 ANCA was negative. Complement C3 was 31 sir, range 92, 31, range 90 to 180, range 90 to 180. C4 was 10.4, range is 10 to 40. जी जी sir. ASLO titer was 219. C3 31 था sir. अरे तरुण अब बता डायग्नोसिस क्या हुई? बैठे रहो बेटा, बैठे रहो. हाँ C3 is low, but C4 is normal, and AXA titer is also high, it is more than 200. So हाँ. it goes more in the favor of post-streptococcal glomerulonephritis. चलो अगर उसका टेस्ट की रिपोर्ट से C3 C4 दोनों लो होते तब क्या होती पॉसिबिलिटी? स्ट्रेप्टोकोकल बोलते कि कुछ और बोलते? Infection, हाँ it could have been higher GN क्या? मतलब in case of hypocomplimentemia, C3 C4 both are low. किस में दोनों में लो होता है? ऐसी कौन सी डिजीज है जो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम प्रेजेंट करेगी? कॉम्प्लीमेंट लो है. हाँ In case of SLE, यस गुड. SLE का इनका. yes sir. और किस में नॉर्मल रहेगा? C3 C4. चलो मान लो C3 C4 बड़ा स्पेसिफिक है, स्टैंडर्ड टेस्ट है इसका, तो बताओ कॉम्प्लीमेंट. हाँ यस, अगर नॉर्मल है तो आईजीए नेफ्रोपैथी, तो अब ये तुम्हारा जो पॉइंट्स है डायग्नोसिस इस गोज मोर इन फेवर ऑफ इन्फेक्टिव, एक्यूट इन्फेक्टिव. आपने अभी क्रायो बोला था, उसमें क्या होती है? क्रायोग्लोबुलिन में क्या होगा? क्रायोग्लोबुलिमिया में क्या होगा? क्रायोग्लोबुलिमिया कैन प्रेजेंट एक्यूट नेफ्राइटिक्स. हाँ But usually C4 is lower and C3 can be normal. हाँ, तो उल्टा होता है उसमें. तो क्रायोग्लोबुलिमिया कैन प्रेजेंट लाइक दिस थिंग, बट उसके अदर फीचर्स नहीं है और हिस्ट्री नहीं है. दैट इज देयर सो मेनी थिंग्स आर अगेंस्ट. अदरवाइज क्रायोग्लोबुलिमिया कैन प्रेजेंट लाइक दिस थिंग. अब ये बताओ, इस पॉइंट पे आपने 4-5 डिफरेंशियल बोलते हैं, पोस्ट इन्फेक्शियस, IgA, Yes sir. like ANCA was now you correct. can keep in C3G and all. मतलब अब after all these labs, whatever your differential, अब कौन से बचे हैं और which ones you don't think कि अब नहीं हो? नहीं Sir, पहले ये बताओ, व्हाट वाज द इंडिकेशन ऑफ बायोप्सी इन दिस पेशेंट? जब तुमको ये Sir, सब ब्लड टेस्ट मिल गए, इट इज मोर गोज इन फेवर ऑफ एक्यूट इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो पीएसजीएन में तो बायोप्सी नहीं करते. बच्चे में बायोप्सी कहाँ करते हैं? बच्चे में तो वो वेट करते हैं. उस समय का इंडिकेशन क्या है बायोप्सी का? पीएसजीएन में कब बायोप्सी करोगे? इस केस में क्या इंडिकेशन था बायोप्सी का? बेसिक बताओ पहले. sir, इस केस में sir there was very rapid development of symptoms. नो, over. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वाज अगेंस्ट. जी sir. 42 years का एज है, दैट इज वन थिंग. रैपिड तो सब में होता है, तो एज वाज द मोस्ट अगेंस्ट, एंड दैट इज द ओनली थिंग. एंड तो दैट्स व्हाई देयर वाज ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कहीं ये आईजीए नेफ्रोपैथी ना हो, बिस्क्रेसेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, समथिंग इज गोइंग ऑन, या कोई और चीज तो नहीं है जो मिस कर रहे हो. ठीक है, तो एज वाज द अगेंस्ट, दैट वाई इट वाज अनएक्सप्लेन्ड रीनल फेलियर. मतलब यू डोंट नो कि व्हाट वाज द कॉज. और तुम्हारे जैसे डब्ल्यूबीसी बहुत कम थे, आरबीसी जो 40-50 बता रहे हो, तो आई थिंक जब आपने देखा तो वो रिजॉल्विंग उसमें आ गया. पेशेंट जो यूरिन की फाइंडिंग वहाँ की क्या थी? यूरिनरी फाइंडिंग जो हॉस्पिटल Sir, में ये जहाँ पे वहाँ की आया है था sir. फर्स्ट डे, वहाँ की है सर. वहीं की बता रहे हो? यस सर. अच्छा ठीक. जब हमारे पास आए थे तब फुल फील्ड आरबीसीज थे सर. चलो अपने यहाँ की बताओ, क्या है यूरिन की फाइंडिंग? सर या अपोलो में जो किया था उसमें भी सर प्रोटीन वाज 3+, आरबीसीज वे 12 to 14, और आरबीसीज वेर फुल फील्ड एंड डब्ल्यूबीसीज वेर 12 to 14. ठीक है, मतलब एक्टिव यूरिनरी सेडिमेंट था, तो ठीक है. अदरवाइज पीएसजीएन में यूजुअली बच्चा है, चाइल्ड है, तो यू विल नॉट डू द बायोप्सी. एंड व्हेन सपोज ये चाइल्ड होता तो इसमें तो एज वाज द. पीएसजीएन में कब इंडिकेटेड है बायोप्सी? बताओ, पीएसजीएन के पेशेंट को कब बायोप्सी करोगे? सर व्हेन देयर इज persistent hypocomplimentemia आफ्टर 8 weeks. आफ्टर 8 weeks. कितना वीक बोल रहे हो? 8. 8 तो कुछ ज्यादा खींच रहा है. 4 वीक, मैक्सिमम 6 में आपको, मैक्सिमम 6 में कर दोगे बायोप्सी अगर परसिस्टेंट हुआ प्लस पेशेंट इज नॉट रिकवरिंग. ठीक है, तो सिर्फ एक टेस्ट को लेके नहीं बैठते कि कॉम्प्लीमेंट लेवल लेके बैठ गए आप.
अगर पेशेंट यूरिन करने लगा, यूरिन आउटपुट बढ़ गया और एजिथेमिक सिम्टम्स बेटर हो रहे मींस गोज इन मोर फेवर ऑफ दिस. तो क्लिनिकल, इफ देयर इज नो रिकवरी एंड परसिस्टेंट हाइपोकॉम्प्लिमेंटेमिया, लो C3, देन इंडिकेशन ऑफ बायोप्सी इन PSGN. ठीक है, तब करेंगे इंडिकेशन. अब उस समय बताओ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ. डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं C3 ग्लोमेरुलोपैथी क्यों नहीं हो सकती. मान लो प्रिज्यूम करो तुम्हारा पेशेंट नहीं ओपन हुआ, अभी डायलिसिस करा रहा है, क्योंकि तुम्हारे केस में तो कुछ है नहीं, अब इसको तो यूरिन होने लगा, ठीक हो गया तो वो तो PSGN हो गया. नहीं, अभी आपका पेशेंट डे 15 पे है, उसका Yes. यूरिन आउटपुट कैसा है और मतलब व्हाट एल्स इज द क्लिनिकल कंडीशन? Sir, abhi after admission in Apollo, he underwent one session of dialysis because his creatinine was around 10 and he was in fluid overload. After that, his urine output gradually started improving, and at the time of discharge, which was on I think 2nd of July, his creatinine was 2.5, and he was passing around 2 to 3 liters of urine. And yesterday he had come to OPD, sir, and his creatinine was 1.2. And his urine routine, there was proteinuria 2 plus along with RBC. तो इस केस में दैट्स व्हाई द ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ एज स्टार्टेड सालूमेड्रॉल एंड डिड द बायोप्सी. तो ही डिड द राइट थिंग. अदरवाइज PSGN में आप स्टेरॉइड नहीं दोगे. अच्छा, और बताओ और ये इन्फेक्टिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और कैसे हो सकती, क्या क्या नेगेटिव हिस्ट्री तुम्हारी ठीक से नहीं सुना. अब सिर्फ PSGN की नेगेटिव बताओ, और दूसरा काज क्या हो सकता है. और दूसरा कॉज है सर, पहले ऑर्गेनिज्म staph बताओ, aureus- कौन सा staph- ऑर्गेनिज्म होता है जो करता है PSGN. कौन सा group A- स्ट्रेन group होता A है streptococcus. स्किन में, कौन सा स्ट्रेन होता है थ्रोट में, और क्या बीमारी करती है. Group A बीटा हेमोलिटिक streptococcus है. स्ट्रेप्टोकोकाई. ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस सर. हाँ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस. हाँ, ठीक है, वेरी गुड. अब कौन सा स्ट्रेन होता है यहाँ पे थ्रोट में और स्किन में. स्किन वाला देर से क्यों होता है. यूजुअली इम्पेटिगो में यू विल गेट ऑल दिस पिक्चर हिस्ट्री 4-6 वीक्स बैक एंड देन पेशेंट प्रेजेंट. थ्रोट वाला जो है विद इन वीक 1 to 2 वीक्स में प्रेजेंट 1 to करता है. तो स्ट्रेन ऐसे होते हैं. जो स्किन वाला है उसके स्ट्रेन बड़े होते हैं, 40 ऐसे, 42-50 ऐसे होते हैं. इसके कम होते हैं, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट. ये याद कर लो, पूछा जाता है. और क्या बीमारी होती है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में. बचपन में बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है. स्ट्रेन डिफरेंट, ऑर्गन इज डिफरेंट. यस, वेरी गुड. रूमेटिक फीवर जो है इसी से होता है. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया. दूसरा और क्या काजेज हो सकते हैं एक्यूट इन्फेक्टिव, ये पोस्ट इन्फेक्शियस जो भी तुम बोल रहे हो, एक्यूट इन्फेक्टिव स्टेफिलोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस हो सकते हैं. यस, गुड. दैट कैन कॉज ब्रॉडली क्लासिफाई करो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, सब में. पैरासिटिक, ऑल ऑफ देम कैन गिव यू पोस्ट इन्फेक्शियस GN. पेशेंट की कौन सी मेडिकल हिस्ट्री लोगे 42 ईयर्स के एज में, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री लोगे और कुछ पूछोगे. तुम्हारे पास सांस फूलता हुआ आ गया, पहले दिन आया, वो मान लो वहां पे जहां भी पहले था उसकी डायलिसिस नहीं होती, डायरेक्ट अपोलो की इमरजेंसी में आ जाता, तो क्या हिस्ट्री और लेते. अभी पेशेंट का इको कराओगे कि नहीं. जी. क्या बीमारी से होगा बताओ, कौन सी डिजीज है जो कर सकती है जिसमें तुमको ये प्रेजेंटेशन मिलेगा. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कैन कॉज ऑल दिस थिंग. यस. पूछोगे कभी ऑपरेशन हुआ, संट वंट तो नहीं लगा तुमको. संट इन्फेक्शन, दीज आर द स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन होता है. दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. कोई प्रोसेसिस कुछ तो नहीं लगी हुई है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट लाइक दिस थिंग ओनली. Skin infection, visceral abscesses, chronic osteomyelitis, then बोन की nephritis, सर्जरी, infective हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. endocarditis. जी. ठीक ये है. सब इसमें तो बैक्टीरियल हो गए, और वायरल, फंगल, पैरासिटिक. वायरस Sir, बताओ, hepatitis कौन सा B, वायरस कर सकता है बताओ. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV also सर, चलो COVID-19. ठीक है, बोल रहे हो सब ठीक. HIV less commonly, but yes, B and C can present with हाँ, देख- acute yes. infective और कौन सा GN. वायरस है ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वायरस बताओ जो कर सकता है ये इन्फेक्शन. हाँ, रेयर वायरस बताओ. एनीमिया हो, हाँ, एप्स्टीन नहीं, Parvovirus, पार्वोवायरस. पार्वोवायरस प्रेजेंटेशन कर सकता है. Coxsackie, CMV, Parvo, ये all सब can थ्योरेटिकल cause हैं. इसमें एनीमिया नहीं है तो इसलिए तुम्हारा आधा काम तो निकल गया ऐसे करके. this. Schistosomiasis, toxoplasmosis, सारे Malaria. ये parasitic. सब कर सकते हैं. ये सब infectious GN के causes you have to remember. तो ये ना टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना. एंटीजन इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गया. तब इसकी पैथोलॉजी तो बाद में बताना, पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ. C3 ग्लोमेरुलोपैथी क्यों नहीं है पूछ रहे हैं सागर. अब डिफरेंशियल ऐड हो गया ना आपकी लिस्ट में. जी, अगर पहले आप C3 GN बोलते हैं, अब उस then इस you had केस no को ऐसे basis. तो कुछ अब नहीं, अभी आपका टाइम है बताओ. C3 low मिला ग्लोमेरुलोपैथी आपको, क्यों नहीं है. नेफ्रिटिक पिक्चर है, C3 लो है, so now हाँ, you बताओ have क्यों post. नहीं है. अरे
बोल clinically I नहीं? cannot differentiate. I have to do Yes, the sir. biopsy. Then I Yes, will tell biopsy it's a diagnosis CB3 or not. Indication of biopsy वो डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट ने जो बायोप्सी किया क्यों किया, यही तो. जी. तीसरा बताओ आईजीए नेफ्रोपैथी में कौन सा प्रेजेंटेशन इस तरह प्रेजेंट कर सकेगा? हाँ, यस, क्रेसेंटिक आईजीए प्रेजेंटेशन है तो कर सकता है. दैट्स व्हाई यू हैव डन द बायोप्सी करोगे आप 42 इयर्स के उसमें, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा जब आपका वो क्रेसेंटिक आईजीए मिलेगा तो. और एक ल्यूपस करोगे, मेल ल्यूपस हो सकता है तो तुम्हारा एएनए ठीक है, बट बायोप्सी का एक इंडिकेशन वो भी बनता है. अगर तुम्हारे C3 C4 हो तो अकेले कभी कभी लैब मिस्टेक हो जाती, तो डोंट टोटली रिलाई ऑन C3 C4. बाहर से टेस्ट कराया तो जर्की रिएक्शन नहीं होना चाहिए. मतलब इफ पेशेंट रीनल फंक्शन इज नॉट डिटोरेटिंग देन यू कैन सिट एंड वेट. But if the renal function is deteriorating and some guy is dialysis dependent, then if somebody is doing biopsy is not doing the wrong. क्योंकि आपको बायोप्सी इज द रियल गोइंग टू गिव यू द रियल पिक्चर कि आप क्या डील कर रहे हो, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा. ठीक है. Yes. तो वायरल मार्कस वाली कर लिया आपने, ल्यूपस कर लिया, C3 कर लिया, आईजे कर लिया, क्रायोग्लोबुलिन का बता ही दिया. यही डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं इनके. और कुछ कोई और डिफरेंशियल हो किसी के दिमाग में तो बताए. ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तब आप इसकी बायोप्सी करोगे. बताओ जी, सर. बायोप्सी बताओ. बायोप्सी की रिपोर्ट आई है, वो तो Yes, बाहर sir. हुई थी, है रिपोर्ट. है सर. हाँ, पढ़ो बायोप्सी की रिपोर्ट. सो बायोप्सी में लाइट माइक्रोस्कोपी शोज. किसी को और कुछ पूछना है बायोप्सी से पहले और डाउट हो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में? तभी बायोप्सी तो आंसर हो गया. बताओ बायोप्सी. So light microscopy shows 18 glomeruli, out of which 3 are sclerosed. The glomeruli appear enlarged, cellular, and show diffuse variable mesangial and endocapillary hypercellularity with remarkable intracapillary and mesangial neutrophil exudation. There is no इतनी जल्दी इसको जोर जोर पढ़ो, सबको समझ में आना चाहिए. नहीं तो प्रीति खड़ी हो, क्या बताया इसने बायोप्सी की फाइंडिंग? तुम पीएसजीएन की बायोप्सी की फाइंडिंग बताओ. तुमको गेस बता रहे हैं, बताओ क्या होता है. वही पढ़ा उसने. हाँ, अबे सेकंड ईयर में है, खड़ी हो, बताओ. हाँ, क्या है? हाँ हाँ हाँ, लाइट माइक्रोस्कोपी है. तुमने सुना जो सर ने बताया, तुम वही बताओ. हाँ, ग्लोबली स्क्लेरोज. अबे ग्लोबली स्क्लेरोज कहाँ बोला है वो? 3 out of 18. 3 out of 18 हाँ, globally अच्छा, और? sclerosed, sir. हाँ, and mesangial hypercellularity with neutrophil exudation. मेसेंजियल हाइपोसेलुलरिटी प्लस एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन, Proliferation. ये वर्ड यूज कर रहा है. विथ न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट. ये दिस इज क्लासिकल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है मेसेंजियल. और ये और क्या मिलता है? और पढ़ा, आगे पढ़ो. Sir, there is no evidence of segmental sclerosis, intracapillary thrombi, any crescents or tough necrosis. हाँ हाँ Interstitial fibrosis and tubular atrophy is less than 10%. हाँ. Tubules show severe acute tubular injury. There are few hyaline and granular casts and oxalate crystals seen in the tubular lumen. Arterioles show focal vacuolization. IF में sir there are 10 glomeruli. अभी रुको तुम. ये यूरिन में प्रोटीन 3+ बता रहा है. कैन यू एक्सप्लेन दिस यूरिनरी बायोप्सी फाइंडिंग? कोई बताओ भाई, तब तो समझेंगे कोई चीज. व्हाट ही इज मिसिंग इन द बायोप्सी? प्रोटीन कैसे? इतनी हैवी प्रोटीनूरिया होगी 3+ इसमें तो मोर ग्लोमरल आरबीसी मिलनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी आग लगी है बिल्कुल से, वो आ रहा है उसमें. तो पीएसजीएन है, डायग्नोसिस है, तो और क्या करोगे? लाइट के बाद और कोई माइक्रोस्कोपी करोगे? आईएम बताओ पहले. चलो आईएम बताओ. Sir, IF में there are 10 glomeruli. IgG is 2+, localized to mesangial and capillary wall, granular pattern. IgG is 2+, IgA 2+, हाँ, C3 is 3+, ओके. C1q negative, IgM negative, kappa and lambda both 1+. हाँ, Kappa lambda both 1+. 1+. ठीक है. अब मान लो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भेज दिया था तो कुछ मिलता कंक्लूजन? जरूरत तो नहीं है. क्या मिलता? सर अगर पीएसजी है तो सब एपिथेलियल. वेरी गुड. अगर तुमको सब इपिथेलियल डिपॉजिट मिलेंगे, इसमें 2 एक्सपेक्टेड हैं, तभी इतनी हैवी प्रोटीनूरिया होती है. अदरवाइज यू विल नॉट गेट सच ए हैवी प्रोटीनूरिया. तो किसी ने मान लो कि इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है उसके यहाँ, तो पहले तो होता नहीं था, अभी भी बहुत कम जगहों पे है, बट उसने भेज दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी. तो दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन बाय विच यू कैन एक्सप्लेन. बिकॉज लाइट माइक्रोस्कोप में भी एनीबडी कैन मिस,
कोई नहीं बता पाएगा इसको, तो ये पिक्चर रहेगी इसकी, ठीक है। तो ये ठीक है, तो सब इपिथेलियल जो है इसमें रहते हैं। और किसमें सब इपिथेलियल होता है बताओ? वेरी गुड, मेम्ब्रेनस में। तो जहां भी हैवी प्रोटीनूरिया है मीन्स सब इपिथेलियल डिपोजिशन है। IgA and IgG क्यों 2 प्रेजेंट है? plus and C3 is 3 Codominant. plus. C3 C3 plus sir. C3 is more predominant than जी. IgG and IgG C3 मैक्सिमम है, ठीक है। 3 plus. तो बट IgA इसमें पॉजिटिव है, तो ये IgA नेफ्रोपैथी क्यों नहीं बताओ? Sir, IgA first is presentation, sir. हाँ? First presentation is more in favor of acute PIGN. PSGN कैन प्रेजेंट विथ IgA पॉजिटिविटी यार, ऐसा थोड़ी होता है। स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है तो Yeah. IgA पॉजिटिव आएगा, IgA पॉजिटिव पोस्ट स्टेफिलोकोकल आएगा, उसमें IgA डोमिनेंट रहता है। जी तो इट डजंट मीन कि वो PSGN नहीं है, IgA नेफ्रोपैथी है, ठीक है। दूसरा, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसा कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे टेढ़ा, तो IgA वाला पेशेंट सिनफिरेंजेटिक इलनेस बताएगा, पहले भी उसको हो चुके होंगे ये एपिसोड। ये पहली बार लाइफ में 42 इयर्स के एज में IgA नहीं बताओगे अगर Yes. पहले से हिस्ट्री नहीं है उसकी। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दूसरा कि और ऐसे पेशेंट में आप मान लो क्रॉनिक कहें तो कहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन? मेसेंजियम में होते हैं ज्यादातर डिपॉजिट IgA के, तुमको मेसेंजियल डिपॉजिट ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो इसमें अब वो जो अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, पिक्चर को क्या बोलते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पिक्चर को? PS Starry sky pattern. स्टारी स्काई, गुड, ठीक है। तो स्टारी स्काई बोलते हैं। लंपी बम्पी, इसको लंपी बम्पी भी कुछ ऐसे, कुछ लंपी बम्पी Deposits कुछ को ऐसे भी lumpy बोलते bumpy हैं क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोल, बट स्टारी स्काई जो है ये क्लासिकल है PSGN का प्रेजेंटेशन। अब इसमें बताओ अब C3 क्यों नहीं है? अभी neutrophilic predominant infiltrate. न्यूट्रोफिल अगर है तब इन्फेक्शन के फेवर में ज्यादा जा रहा है। न्यूट्रोफिल नहीं होता C3 तो जीन में differential either diagnosis कुछ C3 और जीन हो में जाता है। usually immunoglobulins are negative sir. हाँ? C3 जीन में usually immunoglobulins are negative. अब C3 नेफ्रोपैथी क्यों नहीं है? डॉक्टर सागर पूछ रहे हैं। या C3 नेफ्रोपैथी होती तो क्या मिलता नहीं, तुमको अब तो बताओ? आपके पास बायोप्सी डायग्नोसिस भी है, हाँ? आपका डायग्नोसिस हाँ? वेरी गुड, तरुण पढ़ता है। तो इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स होंगे, इसमें इंट्रामेम्ब्रेनस नहीं होते PSGN में, ठीक है। सब एंडोथेलियल होंगे या सब एपिथेलियल होंगे, ठीक है। इंट्रामेम्ब्रेनस नहीं होंगे तो, और यही एक ऐसा जो 4 हफ्ते के बाद भी लो C3 तुम्हें परसिस्ट करेगा, तो C3 ग्लोमेरुलोपैथी होती है, तो जो कि आया पेशेंट तुम्हारा रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं। दूसरा इसमें ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा ल्यूपस क्यों नहीं है? ल्यूपस में क्या होता है? Lupus में sir will have follows IF picture sir. IgG, IgA, IgM positive रहेगा. C3 and C1 Q भी positive रहेगा. kappa lambda positive रहेगा. हाँ? क्या बोल रहे? Follows picture मिलेगा sir C3 C1Q. in IF. C1Q पॉजिटिव आएगा कि नहीं ल्यूपस में? Yes sir. ठीक। फुल हाउस का मतलब क्या होता है? Sir है IgG विष्णु, फुल हाउस क्या होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में? बता जरा। और कौन कौन से होते हैं? और बता तरुण, पीछे भी एक ही बोला है, IgG, IgM का नाम क्यों नहीं ले रहा? डर क्यों रहा है? फुल हाउस का मतलब जितना जानते हो सब बता दो, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। फुल हाउस होता। फिर और क्या रहेगा? So what is your final diagnosis now? so final diagnosis acute post-infectious glomerulonephritis. जो सर पूछे थे, why this one? The neutrophilic infiltrate, C3 predominant. जी It can also have IgA presence, but C3 is the dominant one here. Then low C3 and overall the presentation. IgA इस तरीके से present करेगा, it's usually crescentic अगर RPGN pattern है, and synpharyngitic. So this is not IgA. Staph का और कोई focus आपको अभी तक history और exam पे Nice. मिला नहीं था to call it staph associated. PSGN, what goes against it is the age group. So most likely it is post-infectious. Then also PSGN में you need either a documented positive culture of the group A Yes, streptococcus, that is very or important. ASO titers, or you need the like hypocomplementemia. So इसमें usually in clinical practice nobody is doing the culture, swab culture, throat culture right now in adults. Like you will just treat anybody with antibiotics. So we don't have a इसका ब्लड कल्चर उन्होंने भेजा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। थ्रोट Negative. कल्चर, ब्लड कल्चर throat swab भी भेजा था, that was also भेजा negative. है। भेजा. It was negative sir. हाँ, बट एनी हाउ ही वाज गिवन एंटीबायोटिक बाय समबडी ना, जिथ्रोमाइसिन खाया था ना। Yes.
तो कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या कोर्स क्या होता है? So PSGN usually recovers by पीएसजीएन की नेचुरल हिस्ट्री बताओ, नॉर्मल टिपिकल PSGN पीएसजीएन की इस केस की नहीं, नॉर्मल PSGN की हिस्ट्री। sir नॉर्मल classically. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द पीएसजीएन एक बच्चे में 10 साल के बच्चे में क्या होगा? So classically, the patient is a child or an adolescent. हाँ? Classically, the patient is a child or an adolescent, male more than female. There बट is वी आर आस्किंग कितने दिन में इसको यूरिन आने लगेगा, कितने दिन में तुम्हारा पेशेंट ठीक होने लगेगा, ठीक है, कब उसका C3 C4 नॉर्मल आ जाएगा, ये बताओ। so there after URTI, there is a lag of around 1 to 2 weeks before symptoms of hematuria and all proteinuria hematuria. Uh, Firstly, it is the immunoglobulins which come down, sir. IgG and IgG recover होगा पहले sir. उसके बाद complements will start decreasing. By 4 weeks, by 4 to 6 weeks, complements should come down, sir. And urine output should improve by 2 to 3 weeks. और सबसे पहले कौन सी सिम्टम्स बेटर होंगे इसके? सब एंडोथीलियल वाले जो वो हैं वो होंगे, सब इपिथीलियल बाद में जाता है इन मंथ में, तो कई पेशेंट को प्रोटोन्यूरिया आती रहती है। दूसरा बच्चा जो है इमरजेंसी में आता है इंसेफ्लोपैथी में, अल्टर्ड सेंसोरियम, पेशेंट का टेंडेंट, बच्चा कलर तो बताता नहीं कभी यूरिन का नहीं, पल्मोनरी एडिमा में आएगा, अल्टर्ड सेंसोरियम में, आप वेंटिलेटर में चले जाते हैं कई बच्चे, बाद में दूसरे दिन जब ऐसे यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन में गड़बड़, तब जाके डायग्नोस होता है ऐसा। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी, तो दिस इज समटाइम एक्यूट इमरजेंसी, तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, यही चीज है। एक सर ऑफ लेवल क्वेश्चन, आजकल आप कितना देखते हो सर PSGN? पीएसजीएन एडल्ट में कहाँ देखने को मिलता है, नहीं मिलता ना, बच्चों के किड्स में भी सर, लाइक इन योर प्रैक्टिस? बहुत You are कम, into रेयरली, medical- ये मैं ये कहता था सर, रेयरली देखते हैं। whatever reason in clinical practice सर हम तो बहुत कम देख रहे हैं, इवन फॉर किड्स। नहीं आते, सबके तो एंटीबॉडी बचपन से डेवलप हो जाती है, सब ये झेल चुके थे, बट चाइल्ड चिल्ड्रन में तो होता है। पीएसजीएन एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन रीनल नहीं, वजह से आपके सेंटर पे आते हैं सर क्लासिकल PSGN? यंग बच्चों में तो आते हैं, 12 के जो पीडियाट्रिक्स वाले तो अच्छे से देखते हैं, मतलब आते ही आता है उनकी तो एक नेफ्राइटिक पिक्चर तो बहुत है, पीडियाट्रिशियन तो बहुत देखते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ दैट दे डोंट नीड डायलिसिस, हार्डली 5-10%, दे 90% दे रिकवर बाय सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसका क्या क्या ट्रीटमेंट दोगे, एंटी हाइपरटेंसिव क्या दोगे पेशेंट को? Sir, because he is कहीं तो रूरल एरिया मान लो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, अभी ज्यादा नहीं हुए हैं, तुम्हारे पास ही आएगा तो क्या करोगे? सर प्रेफरेबली CCB सर, क्योंकि ये ओलिगोएनेरिक है। हाँ। CCBs प्रेफर करेंगे सर, ओलिगोएनेरिक, इसलिए विल अवॉइड ACRBs एंड देन वी कैन गिव अल्फा ब्लॉकर्स और सेंट्रल जब सिम्पैथेटिक। भी एक्सेलेटेड हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा में डाययूरेटिक दोगे दबा के इसको, और कुछ नहीं दोगे, और डाययूरेटिक से नहीं सेटल हो रहा है तो डायलिसिस करोगे, बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो डाययूरेटिक एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द ट्रीटमेंट इसमें, तो कह रहे हैं हार्डली नीड्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जैसे बच्चा प्रेजेंट करते दे यूजुअली इन फ्लूइड ओवरलोड, हिस्ट्री ऑफ ओलिगोएन्यूरिया, चेस्ट like shortness of breath, pulmonary edema. So loop diuretics are number one, and dialysis is needed in very few cases. Hardly Biopsy 5-10, even in fewer. not more than 5% ही में होगा। तो ये रेयर एडल्ट पेशेंट था, डायलिसिस डिपेंडेंट था, ये चीज थी इसमें। फिर क्या किया, जब बायोप्सी कर लिया तो स्टेरॉइड दिया कि नहीं इसको? सर इट वहाँ वाज से टेपर्ड कितना एंड चल के स्टॉप। आया? हाँ, इट वाज टेपर्ड एंड स्टॉप्ड सर। नहीं, वहाँ से कितना चल के आया था स्टेरॉइड? Sir, it was started with 60 mg per day. When he came to our hospital, it was on 60 mg per day. So we did a review of the biopsy slides and we confirmed the diagnosis. After that, we started tapering it we made it alternate days, sir. अभी उनका 60 Actually, mg. after biopsy, there is no role of steroid in this patient. You have to stop the steroid. और अगर पेशेंट को यूरिन आने लगा तो देने की जरूरत ही नहीं यार, क्यों और उसको दूसरा बवाल करना, कोई करना ही नहीं कुछ उसको। PSGN में स्टेरॉइड्स इंडिकेटेड है? Initially, we have to treat the infection only. Treat the infection and supportive therapy. सागर पूछ रहा है पीएसजीएन में, चलो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पीएसजीएन का पेशेंट है, ब्लड कल्चर स्ट्राइल है, थ्रोट कल्चर स्ट्राइल है, इंडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड बताओ बायोप्सी के बाद। And actually, in some cases, steroids have been given if the PSGN is continued for the long In time. some cases 1 to 2% can present crysenteric glomerulonephritis, then you can give the steroid, otherwise no need for। IgA होता विद क्रिसेंट, स्टेरॉइड देना ही देना है आपको, स्टेरॉइड ये इंडिकेशन है। बट पहले सेप्सिस को रूल आउट करके, कोई एंडोकार्डाइटिस तो नहीं है, ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब टू सी द ईगो कराना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदरवाइज इम्यूनोसप्रेशन का कोई रोल नहीं है इसमें। अगर
Even if it is post-infectious GN in our patient, retarded patient, there is no documented role of immunosuppressive therapy of any form. कुछ नहीं The देना biopsy picture is very tempting कि mesangial proliferation है, exudate आ रहा है, ये सब deposit आ रहा है, let's steroid in. But there is technically no reason. In fact, there are smaller studies in case series which have shown a worse outcome. That people who were on नहीं देना steroids, चाहिए many of them will have hyperglycemia, then their infections can actually सेकेंडरी worsen. Sir इन्फेक्शन just है said you have to स्टेरॉयड rule out कैथेटर पड़ा sepsis. हुआ है क्या करने की जरूरत है नहीं देना स्टेरॉयड बिल्कुल नहीं देना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यूजुअली क्रेसेंट होते नहीं पीएसजीएन में बट आईजीए अगर होता तो आईजीए विद क्रेसेंट कैन प्रेजेंट विद दिस इज सब फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तब आप कर सकते हो So steroids are actually contraindicated in infectious GN. You have to do a thorough workup of what is the infection source, treat that infection, suppress the दैट इज द ओनली infection. ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट है बस दैट्स ऑल That will stop the pathophysiology of kidney damage, and धीरे धीरे they will recover. Steroids are actually contraindicated. और किसी का कोई सजेशन इस केस में हो बोलो देखो जस्ट अ पर्सपेक्टिव आप थर्ड ईयर हो आपने कितने सारे केसेस देखे होंगे एमआईसीयू से रेफरल आ रहा है चेस्ट वालों के अंडर पेशेंट है एलआरटी आई है कोई और पेशेंट है आप उनके यूरिन सेडिमेंट्स पे कभी ध्यान दीजिए यू विल सी दिस पिक्चर मेनी टाइम्स यू कैन हैव 1+2+ proteinuria some will have RBCs or pus cells along you don't biopsy all of them right the reason you can find infectious related even glomerular process glomerular inflammation going on in a lot of patients but you don't biopsy all of them. Why? Because you're not changing the therapy. You have an evident source. The patient is already being treated with IV antibiotics. You just follow them clinically. What do you do? Just like PSGN. If there's a need to dialyze them, you dialyze them. You're supporting them with loop diuretics. You're supporting them for their BP, whether it is high or low, and then correcting your infection source. So you don't biopsy every person that you come along with this picture. इस पेशेंट में 42 इयर्स का पेशेंट है हाइपरटेंशन है पेशेंट को ठीक है हेडेक हाइपरटेंशन ये सब करके आया था फ्लूरो फंडस एग्जामिनेशन में क्या अनएक्सपेक्टेड चीज देख के डिफरेंशियल डायग्नोसिस चेंज हो जाएगी एक्टिव यूरिनरी सेडमेंट है और हाइपरटेंशन है और फंडस एग्जामिनेशन में क्या देखना चाहते हो नॉर्मल था तो ठीक है अगर एबनॉर्मल क्या सर होगा अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रिलेटेड आईआरजीएन हो रहा है देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ रॉथ स्पॉट्स क्या? रॉथ स्पॉट्स सर इन्फेक्टिव चलो ठीक एंडोकार्डाइटिस है वो तो बहुत ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही डायग्नोस कर ले तो बहुत है नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए तो मुश्किल है और क्या फ्रैंक क्या मिलेगा तुमको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हाँ? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के फीचर्स में और उससे भी ज्यादा जरूरी कौन सा डिजीज है जो प्रेजेंट कर सकती है हाइपरटेंशन के रीनल फेलोर के साथ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है पेप्टिलोइडिमा देखोगे अगर पेप्टिलोइडिमा है तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कैन प्रेजेंट ऑल दिस थिंग लाइक दिस थिंग इसका बीपी नहीं देख रखे हो कुछ रिकॉर्ड नहीं किए हो सपोज फीवर बहुतों को आता रहता है तो जरूरी थोड़ी तो हिस्ट्री तो पेशेंट कुछ भी देता है तो दैट्स वाई यूरिन एग्जामिनेशन एंड फंडस एग्जामिनेशन एंड पर रेक्टल एग्जामिनेशन अगर नहीं किए हो एग्जाम में जैसे एल्डरली पेशेंट है पर वेजाइनल पर रेक्टल क्योंकि आप बोल दो एग्जामिनर्स को आई हैव नॉट डन प्लीज लेट मी नो द फाइंडिंग या पेशेंट हैज नॉट कोऑपरेटेड फंडस का आई हैव नॉट डन सर आई नीड ए फंडस बट आपको थ्योरेटिकली आना चाहिए क्यों कर रहे हो फंडस आपको पता ना चाहिए व्हाट यू वांट टू सी द फंडस वो पर रेक्टल कहोगे व्हाई यू वांट टू डू पर रेक्टल टेल मी सो हिस्ट्री ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी लग रही है तुम्हें कुछ लग रहा है कुछ ऐसा पर वेजाइनल एग्जाम से तो बोलोगे तो ये दीज आर द थिंग्स इंग्वाइनल साइट कभी नहीं मिस करो लिम्फ नोड नहीं मिस करो तो जनरल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरल एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन तो एग्जाम में बिल्कुल मतलब टेक हिस्ट्री लाइक MBBS प्रेजेंट लाइक MD मेडिसिन नॉट मोर देन दैट So the younger generation, I don't know, like how many of नहीं you. अभी यंगर जनरेशन का रिजल्ट अच्छा नहीं, है sir, मैं भी, otherwise very like, difficult to I'm closer to them, but fundus examination, how many of us are confident doing it, or how many of us are officially trained, sir? मतलब I have no shame in saying I am not. पहले ये trained, बोलो sir. कि हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड टू सी द फंडस पहले तो ये बोलो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग एक काम करो सिर्फ जैसे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट केसेस किसी के आए जब भी आपको ऑफ मिले मरीज के पास कंटेनर लेके जाया करो बोले बेटा इसमें यूरिन दे दो जाके पहले उस यूरिन को डिपिस्टिक और माइक्रोस्कोपी देखना शुरू करो क्योंकि एग्जाम में पता नहीं अभी रखते कि नहीं हमारे टाइम पे तो लैब पूरा माइक्रोस्कोप और सब कुछ रखा रहता था अभी यूरिन सेंट्रीफ्यूज है आप सबकी यूनिट्स सब कुछ लगा रहता था नहीं स्लाइड चिप सब कुछ है सब कुछ होगा माइक्रोस्कोप वो सब अरे कैसे नहीं होगा सब टर्सरी केयर सेंटर में है एटलीस्ट जैसे सर कह रहे हैं कि सारे AKIs में यूरिन डिपस्टिक और सेडिमेंट
मतलब that as a nephrologist you should see. जब फाइंडिंग्स देखोगे रिट्रोस्पेक्टिव कर लो, जिसकी बायोप्सी में फाइंडिंग है अब जाके उसका यूरिन देख लो, चलो कम से कम भूलोगे नहीं कि ये ऐसा यूरिन आया तो ये मैं डायग्नोसिस बना। ऐसा है यार, काम किसी ज्यादा है तो कास्ट चलो का reclam- बायोप्सी फाइंडिंग के बाद देख लो। सेकंड, जो भी आपको बायोप्सी होती हैं आप हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास जाओ नोट करके, चाहे कंसल्टेंट के पास टाइम बोले मैडम क्या होता है दिखाओ, ये क्या होता है, तो तब फिर आपको पिक्चर क्लियर होगी। एक दिन में नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। जाके हिस्टोपैथोलॉजिस्ट से इंटरेक्ट करो, जैसे भी करना उनसे जो भी सिली क्वेश्चन पूछना हो। जो उसने पढ़ा वो आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। अच्छा ये यहाँ दिख रहा है। तो सर तो देखो ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत बार बायोप्सी रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन हाँ, इतना वेग सब दे देते हैं। ट्रांसप्लांट में तो बहुत कॉमन है। अगर आप इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट रीडिंग योर LMIF फाइंडिंग्स, आप डेफिनेटली कभी ना कभी अटकेंगे। समटाइम्स अ पैथोलॉजिस्ट विल गिव यू सच अ वेग और like wide differential that unless you know what you want to see in the biopsy you will never be able to make the diagnosis. ऑलवेज मतलब कोरिलेट विद क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। जैसे इसमें जो बायोप्सी फाइंडिंग है इसकी हिस्ट्री भी उसमें फिट हो रही है, तो इसलिए आपकी डायग्नोसिस ये है। This biopsy is not like classical for just infection associated. अगर हम बायोप्सी से केस शुरू करें कुछ भी हो सकता है। जो हमारे डिफरेंशियल थे तो आपके ब्लड वर्क, लैब वैल्यूज, बट यू हैव टू बी गुड एट हिस्टोलॉजी। और ये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान सिखाया सकता है और अभी पढ़ सकते हो। वंस यू गेट इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस देन इट्स वेरी टफ। कम से कम वही चीज है, अगर जिस पेशेंट की बायोप्सी तुम्हारे वार्ड में हो उस पेशेंट का जाके यूरिन देख लिया करो, फंडस देख लिया करो, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास चले जाया करो 4 बजे के बाद, जब राउंड खत्म हो जाए, जब भी 1 दिन 2 दिन में सब लोग इकट्ठे होकर चले जाया करो कि आओ आज ये केस चल करते हैं। जहाँ हैवी यूनिट है वहाँ एक दूसरे से पूछ लो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।